السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آڈیو کو ذرا سماعت فرمائیں اور دیکھیں اس وہابی کی کتنی بہترین اصلاح ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام ہلو، علیکم وعلیکم السلام۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت المقام دوزخ الحرام جنت طوال اور خیریت سے ہو؟ جی اللہ کرم۔ جی مجھے پہچانا؟ نہیں تو کون بول رہے ہیں؟ جی میں سالم بول رہا ہوں۔ جی سالم بول رہا ہوں، سالم۔ اچھا، سالم بول رہے ہیں۔ جی میری ایک بار بات ہوئی تھی یار حضرت، جیسے کہ ہم لوگوں میں اختلاف تو ہے پر ایسے تھوڑی دور ہوگا، جیسے کہ ہم آپ کو گالی دیں یا آپ ہمیں گالی دیں، تو جیسے کہ میں سنی ہوں، بریلوی ہوں حضرت۔ جی 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 میری بات سن لی۔ جیسے کہ ہم نے نا آپ کی ایک آڈیو سنی تھی، آپ اس میں کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت رنڈیوں کو اپنی شرم کا دکھا دیتے تھے، ایسا بول رہے تھے۔ جی تو آپ اس کو پورا اس کتاب کو پڑھا ہے کیا؟ آپ پڑھ کے بتائیں گے کیا آپ؟ جی جی بہرحال بتاؤ، میں یہ کہہ رہا ہوں، جو وہ کہہ رہے تھے نا، وہ تو تھے ساتھی ہمارے۔ ہاں ہلو، میں نہیں تھا وہ۔ جی بولیے۔ ہلو، ہاں بولیں بولیں، آپ بولیں حضرت، آپ بولیں، آپ میں سن رہا ہوں۔ بیٹھے ایسے تھے، تو وہ جو بات کری تھی وہ تھے ہمارے ساتھی تھے وہ۔ ہاں ہاں، میں نہیں تھا وہ، اس طرح کی بات میں نہیں کرتا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو آپ جیسے کہ میں اس واقعے کو پورا بتا دے رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ ہمیں دو گے تو آپ ہماری طرف سے آپ کے اکابروں کو گالی پڑیں گی، تو اس لیے گالیوں سے بچیں۔ اگر اپنے اکابروں کی جیسے برائی نہ کر، جو وہ انسان اپنی اکابروں کی برائی کرتا ہے، اگر میں تمہیں اکابر کو گالی دوں گا تو تم آپ میرے اکابر کو گالی دو گے، سیدھی سی بات ہے۔ اب جی میں جی، جی دیکھو ہاں دیکھو، وہ بھی ہمارے بھی ساتھی ہیں، جیسے مطلب آپ کے بھی ساتھی ہوں گے کچھ جی ایسے۔ ہمارے جی بھی میرے فون سے بات چل رہی تھی، ہمارے ساتھی تھے وہ، جی جی جو بات کر رہے تھے اس طرح کی۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں اسی واقعے سے، کہ اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے 4.25 سال کے تھے، 3 سال سے اوپر کی عمر شریف تھی ان کی۔ وہ جی 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 اپنے بڑے بھائی جان کا کرتا پہنے ہوئے تھے، اور اتنی عمر میں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے زیادہ انسانوں کو۔ وہ جی بڑا کرتا پہنے ہوئے تھے، تو وہاں سے کچھ رنڈی نکل کے جا رہی تھیں، تو بچے شور مچا رہے تھے، یہ وہ ہیں فاحشہ ہیں فاحشہ ہیں، ہنس رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ان کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے اپنا جی منہ چھپا لیا، کرتا اٹھا کے منہ جی چھپا لیا۔ تو ایک رنڈی پاس میں آ کر پوچھنے لگی کہ کیا ننو کو میاں تم نے منہ تو چھپا لیا، شرم گاہ تو تمہاری کھل گئی۔ تو اعلیٰ حضرت اس وقت بھی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے تھے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ زنا بدترین راستہ ہے، بدکاری بہت بڑا، یعنی آنکھوں کا زنا ہے یہ، اور جب تک جی آنکھوں سے دیکھو گے تب تک شطر نہیں بھگے گا، آنکھوں سے ہی جی سارے سلسلے شروع ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے اپنی جی آنکھوں کو چھپایا۔ وہ اتنی سی عمر میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کر رہے تھے۔ تو جیسے کہ اب ہمارا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اشرف علی تھانوی جی اپنے بھائی کے سر پر پیشاب کیا کرتے تھے، تو اس کی وضاحت تم ہی کرو گے۔ تو ہم نے تو نہیں کہا نا سر، یہ اشرف السوانی میں بھی لکھا ہوا ہے ایسا۔ تو وہ اچھا تھا، یہ تو ایک حقائق تھا، یہ تو اور حقانیت ہم لوگوں میں ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں اس بات کو۔ اتنی سی عمر میں اتنی عقل، اور یہ عقل کیا ہے سر کہ کسی کو گالی دینا؟ ہم جیسے گالیوں سے پرہیز کرو سر، جیسے ہم آپ کو گالی نہ دیں، آپ جیسے بات کرو تو اس سے نا نارمل طریقے سے کرو، اپنی بات اگر پہنچانا ہے کہیں تک۔ جی، جی جی آپ دیکھو پہلی بات تو ہاں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، جی جی بالکل، بہت اچھا۔ جب تک دوسرا اگر پھر بھی برداشت کرتا ہوں، دوسرا گالی دیتا پھر بھی، کیونکہ گالی دینا کوئی ناجائز ہے اچھا سر وہ گالی بکے گا نا تو کب تک بکے گا؟ بس چپ جاؤ، ہاں کہیں بک لیا نا تو نے، بس یہی سکھایا تیرے کابر نے، ایسا بول دو تو چپ جائے گا، پھر آگے نہیں بولے گا، سمجھ اس طریقے کی بات کرو سر۔ اب میں وہ بول رہا ہوں، تو تم سے ایک بار میری بات ہوئی تھی نا سر، ایک بار میں نے بولا تھا میں سالم بول رہا ہوں، وہ طارق جی جمیل جی صاحب کی میں نے ایک آڈیو بتائی تھی آپ کو۔ جی 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 ہاں میں وہی بول رہا ہوں، تو چلو
हाँ हाँ परेशान किया। तो वो जो थे हमारे साथ ही थे, जी जी तो वो इसलिए नहीं कर रहे थे, वो चिढ़े हुए थे, वो बात तो चल रही थी दूसरे और किसी से, लेकिन उन्होंने लैंड पे लेकर के उनसे बात कराई थी पहले। एक मुंबई के हैं अब्दुल्ला नाम के, हाँ तो वो है ऐसे ही बकते हैं, कुछ से कुछ अशरफ अली खान भी ऐसा, रणदीप की औलाद और भी कुछ से कुछ बकते हैं, वो गाली बकते हैं। जी तो जी इसलिए उन्होंने ये समझ के उनसे कर दिया, ऐसे गुफ्तगू उनसे ऐसे कर ली, क्योंकि वो दोनों पहले बात कर चुके थे ना, जी तो जी हाँ इसलिए। हाँ बोलिए हाँ, तो वो उन्हें समझ के वो भी हमारे मतलब जाहिर बात है हमारे कादिर को कोई कुछ कहेगा तो फिर दूसरा आदमी भी कहेगा, तो इसलिए कह दिया था मैंने। जी जी हाँ। तो अब अब्दुल्ला भाई वो, चलो मुंबई के, मैं भी मुंबई का ही हूँ सर। तो मुंबई, मैंने आपको अच्छा बताया फरीदाबाद, मैं मुंबई में ही जी। आया हुआ हूँ, अभी मुंबई में मौजूद हूँ। अच्छा, आप तो वो तो आपके जान पहचान में नहीं नहीं, होंगे अब्दुल्ला के? हमारी जान पहचान के तो नहीं, खैर पता है, सुना है वो अच्छा राहल भाई के कांटेक्ट में रहते हैं, काश वो, अच्छा हाँ अच्छा। ऐसा सुना है हमने, जैसे कि काश हमारी कभी उनसे बात नहीं हुई है। और खाली 3-4 लोग और भी बताएं कि अब्दुल्ला भाई हैं वो, जी बाकी कोई एतराज़ नहीं सर। जैसे आपने सिर्फ गालियों से आप भी परहेज़ करें और हम भी इंशाल्लाह, जी जैसे कोई ना जी जी इख्तिलाफ, तो अच्छी बात है, एक दूसरे से बात करोगे तभी तो हम लोगों में इख्तिलाफ जी दूर जी होगा। अगर मैं तुम्हें गाली बकूँ जी। तो तुम अपनी बात थोड़ी पहुंचा पाऊंगा आप तक, नहीं आप पहुंचा पाओगे मुझ नहीं तक। ये हमारे जो नहीं जी इख्तिलाफ हैं, एक सवाल आप कर लो, एक जी सवाल हम कर लें, ऐसे करके जी। जब जवाब अगर मुकम्मल मिल जाए तो बात ही ख़त्म। ये गाली छोड़ करके ये टटोल लेगा इंसान के किसके पास क्या है, इसका अकीदा क्या है, जी इसका जी हाँ, मतलब क्या है। पूछे उससे उनने। जब उस तक पहुंचेगा इंसान तक, तो ठीक जब है, देखो पहले ही जब गाली बकल लगेगा तो फिर क्या पूछेगा? जैसे हमारा अकीदा ये है, जैसे कि हम नबी को हाजिर नाजिर मानते हैं। और अब ये पूछ लो, अरे नबी बाथरूम में भी हाजिर हैं, इधर भी हाजिर हैं, इधर भी हाजिर हैं, तो ये उसने हमसे पूछा ही नहीं, हम मानता कैसे? हम तो अपने जी नबी सर, मैं हम अपने नबी को इस तरीके का हाजिर नाजिर मानते हैं सर। एक खाली बात बता दूँ, हम अपने नबी बताइए। करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरीके का हाजिर नाजिर सल्लल्लाहु मानते अलैहि हैं वसल्लम। कि हमारे आका करीम अभी हाजिर मदीना शरीफ में अपनी कब्र अनवर में है, और नाजिर सारी दुनिया पे हमेशा रहते हैं। और इस कुरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि नबी मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा करीब है। तो ये हो गया। फिर एक कुरान की आयत एक ये है कि वो पारा नंबर 22 सूरे अजहर कुछ ऐसी है, नाम सूरे पारा नंबर 22 है, आयत नंबर 46 है, ऐसी है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सर। औज़ु बिल्लाहि जी मिनश जी शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजुम मुनीरा। ए जी जी, नबी, ये 22वें पारे की आयत थी। हाँ जी 22वें पारे में, आप हाफिज़ हो, आपको पता जी होगा। खैर मैं हाफिज़ जी नहीं हूँ, जी मैं एक स्टूडेंट हूँ जी। उसके अंदर जी अल्लाह जी ताला फरमाता है कि ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, हमने तुम्हें शाहिद बना के भेजा। शाहिद का मतलब गवाह, गवाह बना के भेजा। जी जी सिराज बना के भेजा, सिराज का माने जी रोशन चिराग भी होता है, सूरज भी होता है। जी नज़ीर बना के भेजा, नाज़िर बना के भेजा। तो जी हमने अकीदा इन्हीं आयतों से लिया है सर। तो, जी, जी इन जैसे आयतों से लिया, लेकिन एक मिनट हाँ जी नहीं कर रहा। जैसा हमारा देखो, पहले तो मैं अपना अकीदा बताऊँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। थोड़ा सा फर्क है बस। जी देखो, जी हमारा अकीदा ये है, नबी पाक जो है मदीना शरीफ में है, ठीक है, जी जी बैतुल्लाह में है, हाँ ठीक हाँ है, जी लेकिन उनकी रहमत यहाँ भी है, जी हर जी। तो जगह है, ये तो सबका ही है, ये तो ठीक हमारा है। भी है ना सर। जी जी, जी जी, उनकी बेशक रहमत जो सुभान है अल्लाह, हर जगह है। और माशाल्लाह। भी वो तो हम इतना मानते हैं कि अल्लाह के बाद में अगर किसी का मकाम है तो तो मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह करीम का। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी, जी बेशक सल्लल्लाहु बेशक, अलैहि सुभान वसल्लम। अल्लाह सुभान जी, अल्लाह, जब माशाल्लाह। तक कोई भी मुसलमान कामिल नहीं हो सकता, जब तक कि आका से मोहब्बत न करे। अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करे कि बीवी बच्चे से ज्यादा, ज़्यादा हर मतलब एक से माल ज़्यादा, दौलत जी हर जी, चीज से ज्यादा बेशक, मोहब्बत जब तक माशाल्लाह। उसके दिल में नहीं हो जाएगी, वो ओके मोमिन नहीं हो सकता। जी, बेशक। अब बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे बात करते हुए, बहुत ही जी, अच्छा। हाँ अल्लाह के नाम में देखो, अल्लाह के नाम में कोई नुक्ता नहीं है, जी 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 मोहम्मद के नाम में भी कोई नुक्ता नहीं है। जी जी, बेशक। अल्लाह ने, हाँ जी 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 जी, अल्लाह के नाम में भी 4 लफ्ज है। जी जी जी।
बेशक। और मोहम्मद के नाम में भी 4 ईद। जी जी बेशक। अल्लाह ने ऐसे मनाया है, अल्लाह के तो महबूब है। माशाल्लाह। ये अदना आप की तुम्हारा गुस्ताखी तुम किसी ने कर दी। जी जी, जो तुम्हारे अकायद किसी जैसे ने आप भी। बोल रहे हैं ना हज़रत, एक मिनट सुन ले, तो यही जी माशाल्लाह अहले सुन्नत वल जमात के अकायद हैं जो आप बोल रहे हैं। जी लेकिन जो आपकी कुछ किताबों में जो लिखा है ना, हम अहले सुन्नत वल जमात वाले जितने भी लोग हैं सुन्नी लोग, हम सबको नहीं कहते। जी जो असल मौलवी रहेगा ना, असल मौलाना जो आलिम रहते हैं, उनसे पूछ लेना कि सब देवबंदी को काफिर कहते हो, तो वो कहते हैं नहीं, हम उन्हें कहते हैं जो जी इन इबारतों को जानता हो और उसके बाद इसको मानता हो, इसका दफ़ा करता हो, उसे हम काफिर कहते हैं उन इबारतों को जानने के बावजूद। लेकिन अनजान, हमें पता है कुछ लोग हैं जैसे पता ही नहीं है क्या बात है क्या नहीं है जी। सर, ऐसा भी होता है। और जी सर, आप बोलिए अपनी बात पूरी करें। देखो, मैं तो पहली बात तो किसी को भी बरेलवी हो और भी कोई भी मसला कहूँ, मैं जो है किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं देखता हूँ अपने आप को बस। जी जी बेशक। क्योंकि तकब्बुर आ जाता, अगर किसी को बुरा कहेंगे तो अपने आप में मतलब घमंड आ जाता है, तकब्बुर ही घमंड आ जाता इंसान को जो है है। ना हाँ, घुसेड़ देता। अब बस तक बराबर मैं गाना हो वही है ना बराबर। जी माशाल्लाह। जी, वो जी जी। कान मिनल काफिरीन। हाँ जी जी जी। शैतान को भी तो तकब्बुर हो गया था। हाँ हाँ, उसे भी, उसे शैतान को जी शैतान बनाने वाली कौन सी चीज़, तकब्बुर। वही तकब्बुर नहीं आना चाहिए इंसान के अंदर। यही बहुत अच्छी बात जी बताई जी आपने। जी। देखो मौलाना साकिब रजा हैं, हेलो, हाँ हाँ जी, बोले बोले। उनके बयान भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सुनता हूँ उनके जी बयान। जी बेशक मौलाना बेशक। साकिब रजा जो हाँ है, जी 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 जी। हाँ, और भी तारिक जमील के उनके सुनता हूँ मैं, तो उनके भी अच्छे लगते हैं बयान। देखो, कोई भी अगर सीरत के मौजू पर बयान करता है मैं उसको सुनता हूँ, जी 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 ठीक है। सीरत हाँ। और जो मतलब जो बिगाड़ पैदा करता है बस उसको नहीं सुनता, मैं ये नहीं देखता। जी जो भी जिसने भी कलमा पढ़ लिया दिल से जी जी। और जी अल्लाह और रसूल को मानता, हम्म दिल से कलमा पढ़ लिया, और जी अल्लाह के जितने भी नेक बंदे हैं, हम्म। वली, पीरा ने पीर जितने, तो जो है मैं जो है उसे बुरा नहीं कहता, जी जी बेशक बेशक ठीक है। बेशक। जो मोमिन है उसे बुरा क्यों कहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल यार, माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा लगा और सर। आपस का इख्तिलाफ है, कोई किसी को कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, तो वो उसकी सजा खुद भुगतेगा, हम क्यों करें किसी की। जी बिल्कुल। जी जी जी। और बस, अब मैं एक बात बोल लूँ सर हज़रत, अगर आप जी मौका देते हो। जी, मैं ये बोल रहा जी जी था। बोलिए। जी 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इंशाल्लाह दिल खुश हो गया। अब ऐसे ही बात करने वालों, काश अपने इख्तलाफ दूर करने वालों, तो कितना मज़ा आता है पता है, बहुत ही अच्छा मज़ा आता जी है। और मैं एक लड़का हूँ सर, मैं जैसे मेरे को नॉलेज भी ज़्यादा नहीं है, मैं 19 या 20 साल का हूँ, 20 साल पकड़ के चलो। अच्छा, जी जी, मैं कोई ज़्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं। इतनी मेरी उम्र है, 20 साल, हाँ 20-21 साल। जी जी बेश। तो जी मैं ये बता रहा, देखो जी, वो हमने आपको बताई थी कि उम्मती आमाल में नबी से बढ़ सकता है, तो ये उनके मुंह की तो हमने इसलिए बताई थी क्योंकि उन्होंने कहा था, क्योंकि किताब में लिखा हुआ है जी, कासिम नानोतवी साहब ने लिखा है, तो ऐसा अकायद तो किसी का नहीं है सर। इसलिए आपने भी कहा था, इतनी गलत बात तो कौन बोल सकता है, मुसलमान हो ही नहीं सकता जो नबी से आमाल में आगे भी बढ़े, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह सबातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, के ए नबी, मेरे नबी की आवाज़ से आवाज़ भी ऊंची ना करो, कहता है ना सर। देखो, जी। हमारा तो ये अकीदा है कि जैसे आपकी आप, बातें सुनते हो ना, जी आपका तो ऐसा लगता है माशाल्लाह कि आप अहले सुन्नत वल जमात हो, जब आपसे बात होती है ऐसा ही लगता है मुझे। लेकिन जब जी मैं देखो मैं, इधर को घूमता हूँ ना, जब किताबों तरफ को, तो यार दिल ऐसा हो जाता है। अच्छा चलो, तक़वियतुल ईमान किताब है सर, ठीक है, जी तक़वियतुल जी ईमान है किताब। अब जी किस तरीके से लिखा है वो भी समझा देना, आपको पता हो तो। सफ़ा नंबर 30 है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि भूत प्रेत जिन शैतान अम्बिया औलिया बे इख्तियार होने में ये सब बराबर है। तो ये तो यानी अम्बिया औलिया को क्या इकट्ठा करना है सर, यानी इख्तियार नहीं है ऐसा कहते हैं, सबको नहीं है। और बराबर क्यों लिखा, चलो इख्तियार ना हो तो मान लिया, चलो तुम अल्लाह की तौहीद बयान कर रहे हो, समझ में आता है। हम्म, लेकिन भूत प्रेत के साथ क्या जिक्र करना अम्बिया औलिया का। आप कुरान से पूछे, तूने इख्तियार ना दिया, तो कुरान कहता है ना सूरह कौसर में, इन्ना आते न कल कौसर, हम्म, हमने तुम्हें कौसर अता किया, यानी कौसर का मालिक बना दिया, खैर व कसीर का मालिक बना दिया, यानी कुरान कहता है इख्तियार वाले। तो इस सर यही बात तो थी। अब आप जी जैसे कि तुम, पता है रज़बिया में कुछ लोगों को एतराज़ है कि हमारे नबी के बारे में आला हज़रत ने लिखा है कि
وہ शबबाजी फरमाती हैं उनकी बीवियां कब्रों में ये तौहीन है, और भी कुछ बातें लिखी हैं। लेकिन शबबाजी का मायना पूछ तो लो क्या लिखा गया है। शबबाजी का मायना हम लोगों में लिखा क़याम करती हैं, नबी का दीदार करती हैं वो और उनकी बीवियां। और जैसे कि इन्होंने ये आयत लिखी है, अब इसकी कोई तफसीली बयान कर दी है, क्यों लिखा। इन्होंने कहा अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए, लेकिन तौहीद ऐसी ही बयान होती है क्या, जैसे भूत प्रेतों के साथ नबियों का जिक्र, ये जी तौहीद। जी। तो ये तौहीद बयान, देखो जाहिर बात है, जैसे तौहीद बयान कर रहे हैं अल्लाह पाक की, ठीक है, जी जी कि तो लेकिन दूसरा कोई सुनने देखने वाला ये भी सोच लेता है कि यार इससे मतलब नबियों की शान घट गई, जी है ना। जी जी। ये तो मतलब हुआ कि मतलब भूत, मतलब क्या कह रहे थे आप अभी। ये भूत प्रेत जिन शैतान ऐसा। हाँ, तो ये है ना इनकी मिसाल की दी इसमें भी, मतलब है ना, ये तो मतलब आ गया कि गुस्ताखी हो गई, है ना। हाँ जी, हमें लगती है गुस्ताखी, अगर आप वजाहत कर दो हमें कोई इतराज़ नहीं है जी, ऐसा कुछ बताओ जी, बोलिए। लेकिन देखो जैसे आप कह रहे थे कि आला हजरत ने लिखी थी, तो वो उसमें जो है शब्बासी का मतलब कयाम की शक्ल में बता रहे थे, जी तो जी। ऐसे ये भी, इसका भी कुछ और मतलब है। तो मैं वही आप मतलब बता दें, यही तो पूछ रहा था सर, जैसे कि मुझे कोई इतराज़ थोड़ी ना है। वजह क्या थी, इन्होंने वजह बताई कि अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए, फिर तौहीद बयान हुई, माशाल्लाह अच्छा लगा। लेकिन नबी का जिक्र ये भूत प्रेतों के से मिलाया और बेख्तियार दोनों को बराबर बताया, ये समझ में नहीं आया ना सर। चलो इंशाल्लाह हम देख करके जी बताएंगे जी अभी। जी बिल्कुल हाँ, सर। बाद में बात होगी तो उसका मुकम्मल बिल्कुल तुम्हें पूरा वाक़या बताएंगे जी जी, आप इंशाल्लाह। पूरा बताएं माशाल्लाह। हाँ, हम जैसे कोई शाम। गाली हाँ, गलौज वाले नहीं है, आप सर हमसे नहीं, मोहब्बत से बात करो, मोहब्बत से ले लो सर। और मुझे हर जैसे मसले का कल मेरे आपको जो है ना, जी जी इंशाल्लाह असर के बाद जो है आप मिल जाए, या फिर मगरिब के बाद, आप जो भी मसला पूछेंगे उसका सब कुछ हल, चुका भी मैं घर नहीं कोई आया हूँ, तो जी उस जी टाइम ना आपको सब कुछ इंशाल्लाह वाज़ेह तरीके से सब कुछ पता चल जाएगा। हम जो समझते हैं या क्या मतलब लेते हैं जी सब जी, कुछ मत हाँ, बताएंगे वही तो, ठीक इंशाल्लाह। है अभी ठीक है। कुछ और बात कर लीजिए, ठीक है ना। चलो हाँ, कोई बात थोड़ी नहीं बहुत। सर, बात तो और क्या, अब आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप इल्मी गुफ्तगू कर रहे हो। वरना एक से हमने कहा था कि मैं सुन्नी हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ, तो कहने लगा तो तुम कुत्ते हो गए, उसके कुत्ते हो गए, यानी अपनी किताबें नहीं पढ़ता, जबकि उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि अशरफ अली थानवी जी कहते हैं कि मेरे नबी को मुझ काले कुत्ते का सलाम कह देना, तो यानी अपनी किताबें नहीं पढ़ते। तो यानी कुत्ते से मुराद वफ़ादार होता है, यानी इसका कोई मतलब भी होता है, जैसे हम लोग कहते हैं हम लोग कहते हैं मैं उनके दर का कुत्ता, यानी उनका दर का वफ़ादार। और ये जैसे हमारे मौला कायनात अली मुर्तज़ा का नाम क्या है, असदुल्ला भी अल्लाह का असदुल्ला, यानी अल्लाह के शेर। तो शेर से जी जी मुराद तो शेर थोड़ी होगा, शेर से मुराद बहादुर। जी जी। जी जी, ये मतलब आते हैं, जैसे अबू जैसे हुरैरा। अली शेर खुदा, जैसे कहते हैं ना अली शेर खुदा, हाँ जी, तो शेर से मुराद यानी शेर अल्लाह थोड़ी का कहते शेर, हैं जी। यानी अल्लाह का शेर। सॉरी, जी जी हाँ जी। जी तो उससे मुराद तो ये क्या लिया हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि बहादुर। जी जी, जी और ये कहते हैं कि मदीना वाले का कुत्ता, ये दुनिया के कुत्ते तो जहन्नुम में जाएंगे, ये तो मदीना वाले का कुत्ता है तो ये कहाँ जाएगा। आला हज़रत तो कहते हैं कि बताइए, यानी हज़रत असहाब ने काफ़ है, उनका एक कुत्ता जो उनके जी। दर की रखवाली का। असाबे क्या। हाँ जी 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 जी, जी उनका कुत्ता तो ये जन्नत में जाएगा, जबकि जन्नत में जी कोई कुत्ता ही नहीं जाएगा, नजासत गिलासत है, वो ज़ाहिरी कुत्ता है, जी असल कुत्ता है, तो जी वो जन्नत में जाएगा। और जो नबी के दर का कुत्ता खाली कहता हो इससे मुराद वफ़ादार हो, तो वो कहाँ जाएगा सर। चलो माशाल्लाह, आपसे बात करके ना दिल खुश हो गया सर। ऐसा कभी कोई भी, जैसे हमें जैसे इतनी नॉलेज नहीं है, जैसे कि आपको कोई सवाल जवाब ना मिल पाते हो, जैसे आप कहोगे बात करो, मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास आलिमों के कांटेक्ट है, मैं आपसे बात करवा दूँगा सर, इसीलिए। जी 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 जी। जी, चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जन्नतुल मकाम वालेकुम दोज़खुल हराम अस्सलाम अनत्ता वालू। जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेशक।